چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل، اسپیکر قومی اسمبلی نے پارلیمانی لیڈرز کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمانی رہنماؤں کو آج خط ارسال کریں گے۔ کمیٹی کے لیے قومی اسمبلی سے 8، سینٹ سے 4 ارکان کا تقرر کیا جائے گا۔ چیئرمین سینٹ کے ذریعے سینٹ سے 4 ارکان کے نام طلب کیے جائیں گے۔ پارلیمانی کمیٹی وزارت قانون سے 3 سینئر ججوں کا پینل طلب کرے گی۔ کمیٹی ججوں کے پینل میں سے چیف جسٹس آف پاکستان کا انتخاب عمل میں لائے گی۔ پارلیمانی کمیٹی 3 دن میں سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کا تقرر کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری نے 26ویں آئینی ترمیم پر دستخط کر دیے۔ گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ حکومت نے سینٹ اور قومی اسمبلی سے آئینی ترمیم منظور کرائی۔ قومی اسمبلی میں 225 اراکین نے ترمیم کی حمایت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا، 26ویں ترمیم سے انصاف کو حصول آسان ہوگا۔ آج میثاق جمہوریت کا ادھورا خواب پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ امینڈمنٹ آئین میں ہوئی ہے، یہ ایک تاریخی دن ہے۔ یہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے۔ یہ خالی ایک ترمیم نہیں، ایک قومی یکجہتی، اتفاق رائے کی ایک شاندار مثال ایک مرتبہ پھر قائم ہوئی ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے نہ صرف انصاف کا حصول آسان ہوگا، مالیاتی سازش ہوا کرتی تھی جس کے ذریعے وزراء اعظم کو ان کی چھٹی کرائی جاتی تھی، جس کے ذریعے منمانی فیصلوں سے ریکوٹیک کار کے، جس سے کہ پاکستان کے خزانے کو اربوں ڈالر کے نقصان ہوئے، کہ آج اس ملک کے اندر لاکھوں لوگ انصاف کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس پارلیمان اور آئین کے لیے کالا سانپ افتخار چودھری والی عدالت ہے۔ کالے سانپ نے ایک نہیں بلکہ کئی وزراء اعظم کو فارغ کرایا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی سے خطاب، مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین۔ کہا، حکومتی بل میں نون لیگ کے سب سے کم، پی پی اور جے یو آئی کے زیادہ نکات ہیں۔ پارلیمان کے لیے، اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جو کالا سانپ، جو دانت رکھنے والا، زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس پارلیمان پہ حملہ کرتے آ رہا ہے، ایک نہیں، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزراء اعظم کو فارغ کروایا۔ وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے۔ عدالت ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، وہ کالا سانپ بن کے ہمارا 18ویں ترمیم کی ارد گرد گھوم رہے تھے۔ جمہوریت کا چیمپئن چیف جسٹس افتخار چودھری نے کہا کہ میں آپ کا پورا 18ویں ترمیم کو باہر پھینک دوں گا۔ ریفارم سے سب سے بڑا کامیابی ہے وہ یہ کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹ کے پروسیس پہ ہم نے پاکستان کا پارلیمان، پاکستان کے عوام کی نمائندگی کا رول واپس دلوا دیا ہے۔ پہلے مسودے اور آج کے مسودے میں واضح فرق ہے۔ قومی اسمبلی میں سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا اظہار خیال، کہا ایک جج سے حکمراں پارٹی اور دوسرے سے قائد حزب اختلاف گھبرا رہی ہے۔ پہلے مسودہ اور آج اس میں فرق خود واضح ہے۔ یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے۔ ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں۔ ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، میاں شہباز شریف صاحب پر ظلم ہوتا ہے، آصف علی زرداری صاحب اور ان کی بہن کے ساتھ، ان کی جماعت کے سینئرز کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوتا ہے، میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں۔ تو میں آج بھی عمران خان پر ہونے والی سختیوں کی مذمت کروں گا۔ اور قومی اسمبلی میں لیگی قائد نواز شریف نے شعر سنایا جس کو مولانا فضل الرحمان نے شعری وزن کے مطابق فوری درست کیا۔ دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں۔ عدلیہ کے کردار پہ ایک شعر ہے، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا۔ جناب اسپیکر، میاں نواز شریف صاحب نے جو شعر کہا ہے بڑا بر موقع اور بڑا بر محل کہا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے شعر کے اندر۔ زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اس میں تو نہیں لگانا ورنہ شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔
वकला बरादरी ने आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। हामिद खान और आबिद जुबैरी ने कहा, हम सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस मानेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के सिवा किसी को चीफ जस्टिस लगाया तो उसे तस्लीम नहीं करेंगे। लतीफ खोसा बोले, कुफ्र का निजाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म और बेइंसाफी का नहीं। हम वकला आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट की 17 जजेस की जजमेंट मौजूद है। ऐसी तरमीम जो है गैर आइनी समझी जाएगी और वो आइन का हिस्सा नहीं बन सकती। इनके पास इख्तियार है कि इसको स्ट्राइक डाउन कर दें। हम इंशाल्लाह ताला मुल्क गिर तहरीक चलाएंगे वकला की। ये बदनुमा धब्बा जो आइन पर लगाया गया है, जो हमला किया जा रहा है, उसको हम रोकेंगे। हम एक नेशनल एक्शन कमेटी बना रहे हैं। 26 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ मंसूर अली शाह जो कि सबसे सीनियर जज है, उसको चीफ जस्टिस वकला बरादरी मानेगी। हम नहीं मानेंगे किसी और को जो सीनियरिटी पर पूरा नहीं उतरता अगर चीफ जस्टिस बनाया गया। अगर आइन के साथ आपने खिलवाड़ किया है, हम उस आइन के दिफा करेंगे। आपने इंसाफ को कल दफन करने की कोशिश की है, लेकिन इंशाअल्लाह ये कामयाब नहीं होंगे। मेरी पॉलिटिकल पार्टी काला कोट है और काला कोट इंशाअल्लाह आज़ाद अदलिया के लिए जान भी कुर्बान करेगा। हम ऐसी अदलिया चाहते हैं जो आइन और कानून पे फैसला दे, बाहर क़यामत आती आ जाए वो आइन के साथ खड़े हो, वो रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हो। आज़ाद अदलिया ही आइन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है। कुफ्र की रियासतें तो चल सकती हैं, बेइंसाफी की और जुल्म की रियासत नहीं चला करती है। सीनियर वकील अली अहमद कुर्द कहते हैं, सारी तरमीम बदनीयती की बुनियाद पर की गई। ये सब एक आदमी को हदफ बनाकर किया गया और वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ये तरमीम करने वाले अवाम के मुजरिम हैं। 56 के करीब क्लॉजेज में अमेंडमेंट की गई। ये सारी की सारी बुनियादी तौर पे बदनीयती की बुनियाद पे है। ये सारा का सारा एक आदमी को टारगेट करके बनाया गया और वो है जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसकी एक बहुत अच्छी साख है काबिलियत के लिहाज से। अगर आप उसको चीफ जस्टिस नहीं बना रहे, मर्जी का कोई चीफ जस्टिस ले आएंगे। ये पाकिस्तान की आवाम के मुजरिम है। क्या पीपल्स पार्टी, क्या मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम का भी नाम ले रहा हूँ, इन्होंने बैसियत एक सहूलतकार के काम किया है। हम वकील इसको रिजेक्ट करते हैं। ये अवाम की मुफाद का कोई अमेंडमेंट नहीं। तहरीक चलाएंगे, हम उसको अंडू करेंगे, उसको खत्म। 26वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक ने दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं। मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम से मुताल्लिक केस पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से दिलचस्प मकालमा हुआ। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल कहाँ हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अटॉर्नी जनरल गुज़श्ता रात मसरूफ रहे इसलिए नहीं आए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो सारी मसरूफियत खत्म हो चुकी होगी, आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल पेश हों। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। मुसाबकती कमीशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच का तस्करा किया। मुस्कुराते हुए सवाल किया कि क्या ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। अब लगता है ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में हर रोज उठेगा कि केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। वकील फरोग नसीम ने कहा कि सियासी मुकदमात अब आईनी मुकदमात बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने मुस्कुराते हुए कहा, चले जी अब आप जाने और आपके आईनी बेंच जाने। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए कि 3 हफ्तों तक केस की समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हम खुद समझने में कुछ वक्त लगेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। फिरदौस आशिक आवान सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। अनरेस्ट है, ना उम्मीदी है, उससे नौजवानों को निकालने के लिए, उसको उम्मीद देने के लिए हमें बहुत कुछ मज़ीद करने की ज़रूरत है। और चूँकि मेरा एक सोशल वर्कर के तौर पे कैमरे से मैं चूँकि खुद वॉलंटरली जानबूझ के ऑफ हूँ, ऑफ एयर इसलिए थी कि मेरे लेबल के साथ भी मैंने वही काम करने हैं और लेबल के बगैर भी मैंने वही काम करने हैं। और मैं जो मेरा यहाँ शरीफा बीबी मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ जुड़े एडिशनल डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि गायनी, आई, डेंटल, स्किन, OPD,
सर्जरी। दूसरी जानिब लाहौर में हसन मुर्तज़ा गुफ्तगू कर रहे हैं। किसी और के एजेंडे पे काम करने के लिए किस शख्सियत को लाया गया है? क्या कहा गया था ईदी साहब को? क्या उनको निशाने इबरत बनाने की धमकी नहीं दी गई थी कि अगर आपने हमारे एजेंडे पे काम ना किया तो हमीद गुल और इमरान खान ने ये कहा था कि हम आपको निशाने इबरत बना देंगे? तो ये चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं कि ये लोग इस मुल्क के अंदर इंतशार चाहते हैं किसी के एजेंडे के ऊपर। मेरा एक सवाल है आज कि अगर आपको हिंदुस्तान से फंडिंग होती है तो क्या वो पाकिस्तान के अंदर इस्लाम को मजबूत करने के लिए फंडिंग करेंगे? क्या मोदी पाकिस्तान के अंदर फंडिंग कर रहा होगा कि पाकिस्तान इस्लाम का किला बने? पीटीआई रुकने कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी का तरदीदी बयान सामने आ गया। कहते हैं मेरे खिलाफ झूठा बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मैं कौमी असम्बली में हूं और 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दे रहा हूं। टीवी के जरिए ये इतला मिली है कि मेरे खिलाफ एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं कौमी असम्बली में मौजूद हूं और इस 26वीं आईनी तरमीम को अपना वोट दे रहा हूं। मैं इसकी मुकम्मल तौर पे तरदीद करना चाहता हूं और यकीन दिलाना चाहता हूं अपने हल्के की आवाम को, अपनी पीटीआई की फैमिली को और अपने कायदीन को कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस अमेंडमेंट को वोट दूंगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं 26वीं आईनी तरामीम से हुकूमत को खातिर खा फायदा नहीं होगा। इनकी गलत फहमी है कि अदलिया को काबू कर लेंगे। इस तरमीम से कोई खास फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। जुडिशरी के इख्तियारात पे हुकूमत को ये सरप्राइज मिलेगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी गलत फहमी है कि इससे कोई जुडिशरी को काबू हो जाना है। सिर्फ ये है गैर जमहूरी एक चेहरा था इस हुकूमत का मजीद आया हुआ है। जिस तरह से एमएन ने इसको अगवा किया गया, पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान के जजेस इस फाशिस्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े हों। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, सियासी किरदार तो है ही नहीं। मार्शल लॉ की रजीम की कठपुतलियां हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की अपनी कोई सियासी हैसियत नहीं है। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई ने बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स की है। बहुत बुरा जो टेक्स्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वो बदलवा लिया, उससे कम नुकसानदेह जो टेक्स्ट है वो अब पास हुआ है। और ये टेक्स्ट भी आप देखेंगे 2-4 अदालती फैसलों की मार है। केसेस लगने में इनको लग पता जाएगा। सर फॉरवर्ड ब्लॉक सुना पीटीआई में बनना जा रहा है। पीटीआई की जो सारी लीडरशिप थी उसको तो पहले ही इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। जुल्म हुआ है लोगों के साथ। इसकी बीवी उठा लें, बच्चे उठा लें, वो खुद उठा के कर लें तो फिर वो क्या करें? जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती सियाहबाब में इजाफा किया। रात के अंधेरों में जो पार्लियामेंट में कार्रवाई डाली गई है, इसने पाकिस्तान की जमहूरी और अदालती तारीख में एक सियाहबाब का इजाफा किया है। वो अदलिया कि जिसमें एक तरीक़ेकार के मुताबिक चीफ जस्टिस का तकर्रुर होना था, अब वो इख्तियार पार्लिमानी कमेटी और फिर वजीर आजम के पास है। मुझे अफसोस है कि कल मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के साहबजादे और उनके पोते और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के नवासे, उनके दामाद की सरपरस्ती में ये जो सब कुछ हुआ है, इसने उस आइन की जो रूह है उसको मुतासिर किया है। इसको ये जमहूरी और आईनी तरीका कहते हैं। इस पार्लियामेंट में आधे के करीब वो लोग हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, जो जीते ही नहीं है। पीटीआई के जिन अरकान ने इन्हराफ किया असम्बली से फारिग करेंगे और पार्टी से भी निकालेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने खबरदार कर दिया। जिन लोगों ने पार्टी से गद्दारी की है उनका वही मुस्तकबिल होगा जो एक गद्दार का होना चाहिए। जाहिर है हम उनको असेंबली से भी हटाएंगे और पार्टी से भी खारिज करेंगे। पीटीआई का वोट वो इमरान खान का वोट है। जो कोई गद्दारी करेगा उसके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। कल हम सब के साथ एक वारदात हुई, महकूम हो गए हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है अपने दिफा के लिए। हम एक बहुत तारीख दौर में चले गए। यहाँ से आगे कुछ नहीं है सवाए जिद्दोजहद के। समझता हूँ कि एक अजीमुशान वकला की तहरीक आपके सामने बहुत जल्द आई। राना ने ज़रूर कोशिश की कि कम बुरी एक वारदात हो और बिल्कुल हमें ये खदशा है कि आइंदा मज़ीद आइनी तरमीम लाई जाएंगी। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की कामयाबी के बाद पिंडी में फैसला कुन टेस्ट मैच की तैयारियां शुरू। कौमी टीम आज रावलपिंडी में ट्रेनिंग शुरू करेगी। इंग्लिश टीम मजीद एक दिन आराम के बाद मंगल से प्रैक्टिस करेगी। ज़राए का कहना है पिंडी टेस्ट के लिए पिच स्पिनर्स के लिए साजगार बनाने की कोशिश होगी। पिच को सुखाने के लिए पंखे और हीटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट जुमेरात से शुरू होगा।
रमीज राजा ने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में खराब विकेटों की जिम्मेदारी बाबर आजम पर डाल दी। साबिक पीसीबी चेयरमैन ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के दौरे पाकिस्तान के दौरान पिच बाबर आजम के कहने पर तैयार की गई थी। पिचेस की तैयारी और खिलाड़ियों की सिलेक्शन कप्तान की बनाई गई हिकमत अमली के मुताबिक ही होती है। इजाजत दे रखी थी कि आप गेम प्लान तरतीब दें। आप हमारे बादशाह नहीं और ना ही हमारी खुद मुख्तारी के मालिक हैं। आप हमारे लोगों की नस्ल कुशी के मुर्तकिब हुए। बरतानवी बादशाह के दौरा ऑस्ट्रेलिया के दौरान तकरीब में ऑस्ट्रेलवी खातून ने शाह चार्ल्स सोम को खरी खरी सुना दी। दबंग खातून ने शाह चार्ल्स को मुखातब करते हुए कहा, आप हमारी खुद मुख्तारी के मालिक नहीं हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।